हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। राइट, अब तक हमने पढ़ा जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी। राइट, तो अब हम इन सबको समराइज करके वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन and their differences as well, differences and similarities. Okay, so now let's move about this reaction. ठीक है, so now let's talk about the SN2 reaction. So features of SN2 reaction, right? So what are the features of SN2 reaction? सबसे पहले ये है order of the reaction is equal to 2, right? So basically this is something that you are supposed to know, correct? And then it's basically a concerted mechanism जिसमें bond formation, bond breaking simultaneously होता है. कोई भी intermediate, that is carbocation, is not generated, right? You already know that rate is dependent on substrate and the nucleophile, so the order is equal to 2, right? Now it is a stereospecific reaction. Okay, so stereospecific reaction means single product is obtained, right? Single product is obtained, so that's basically inverted product, so Walden inversion. Now substrate. Okay, so नाउ SN2 रिएक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, राइट, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक कर सकता है बिकॉज देयर इज अटैकिंग स्पेस अवेलेबल, राइट? तो दैट मींस लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड is going to attack much faster, right? तो अगर मैं आपको दूं कुछ substrates like methyl iodide, right, and if I give you ethyl iodide, methyl iodide, then I have ethyl iodide, and then I have isopropyl iodide, correct? And then I have something like this tertiary butyl iodide. तो अटैक सबसे इजी होगा मिथाइल फिर इथाइल. इन दो सबस्ट्रेट्स में क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से अटैक नहीं होगा, राइट? सो इट इज स्टेरिक डिपेंडेंट, दैट मींस क्राउडिंग डिपेंडेंट, एंड द रिएक्टिविटी इज मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री, राइट? And then nucleophile, क्योंकि nucleophile attack कर रहा है, obviously it can be strong, right, or it can be moderate, but it cannot be weak. Okay, so it will be strong, it will be moderate, but it will never be weak. तो ये सारे के सारे हैं nucleophile, right? और जो leaving group है, that means I minus, right? So the leaving group should be able to stabilize the negative charge while it is leaving, right? So this is basically the order. Okay, so this will be explained during the JEE lectures, right? So for the time being, just remember it should be a very good leaving group. Okay, now इस reaction में normally कोई solvent use नहीं होता because okay, कोई भी इंटरमीडिएट अवेलेबल नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता, राइट? बट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको यूज करना होता है सॉल्वेंट, राइट? तो वी विल यूज अ सॉल्वेंट, बट द थिंग इज इट विल नॉट हैव अ प्रोटॉन, सो वी शुड यूज अप्रोटिक solvent, right? Aprotic solvent, it can be polar, even some non-polar solvents are also working. Okay, so ये था features of SN2 reaction. Now, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन में बेसिकली कार्बोकेटायन जनरेट होता है, राइट? सो यू गेट अ रेसिमिक प्रोडक्ट, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट? एंड देन इन दिस केस बेसिकली द ऑर्डर इज इक्वल टू 1 और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्राउडेड, राइट? तो ये सब ध्यान में रख के अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. ओके, तो mechanism as we already know, it's carbocation mechanism. Order of stability है बेंजिलिक अलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Nucleophile does not attack, so order is equal to 1, right? So you can say it is independent of the concentration of the nucleophile. Okay, now अब हम देखते हैं stereochemistry. क्योंकि हमको मिलता है racemic, so this is optically inactive. मतलब अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको डेक्स्ट्रो लेवो दोनों साथ में मिलेगा, राइट? द सबस्ट्रेट किस चीज पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है. तो सबस्ट्रेट विल डिपेंड ऑन कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. तो बेंजिलिक अलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री विल नॉट शो. Nucleophile is not important because
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पहली बात होता ही नहीं है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कितना भी बढ़े, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, राइट? एंड देन लीविंग ग्रुप, यू कैन जस्ट से इट शुड बी अ गुड लीविंग ग्रुप, राइट? ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होता है, सो यू नीड अ पोलर सॉल्वेंट, राइट? पोलर सॉल्वेंट एंड इट शुड बी अ प्रोटिक सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि वो कार्बोकेटायन को सराउंड करना चाहिए, इसलिए ऑब्वियसली पोलर होना चाहिए, right? So these are the features of SN1 reaction. Okay, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है nature of the substrate, the stereochemistry. Okay, so this is basically, and there are questions related to अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन SN1 में 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ाया जाए तो क्या होगा? रिएक्शन में कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शंस. अब हम देखते हैं कंपेयर करके SN1 एंड SN2, राइट? तो दिस इज, सी, कैन यू सी दिस? इन SN1 द मैकेनिज्म इज कंसर्टेड, हियर इट इज कार्बोकेटायन. कंसर्टेड मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है. Rate equilibrium, concentration of substrate and nucleophile, so order is equal to 2. Here the order is equal to 1. Correct? तो stereochemistry इसमें होता है Walton inversion, मतलब सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव आई विल बी डिस्कसिंग लेटर, सो जस्ट रिमेंबर इट्स इन्वर्शन. इसमें आपको मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, मतलब देयर इज लॉस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब अगर मेरा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो तो भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. सो दिस इज शोन बाय लीस्ट क्राउडेड स्पीशीज, राइट? सो दिस इज लीस्ट क्राउडेड. लीस्ट क्राउडेड मतलब है मिथाइल, देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो SN1 दिखाएगा. कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड होता है, दैट इज बेंजीलिक, अलाइलिक. 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं दिखाता. न्यूक्लियोफाइल शुड बी ईदर स्ट्रॉन्ग और इट शुड बी ईदर मॉडरेट. यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट, राइट? देन लीविंग ग्रुप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि लीविंग ग्रुप कार्बोकेटायन बनने के बाद लीविंग ग्रुप जो हैलाइड है वो निकल रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पोलर अप्रोटिक और इसमें है पोलर प्रोटिक, बिकॉज कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल वीडियो अबाउट SN2 एंड SN1. मैंने इस वीडियो को एकदम शॉर्ट इसलिए रखा है बिकॉज आप पूरा SN1 SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म विथ एनिमेशन and lot of things you are going to see together. Okay, so this is about the video on important aspects and comparison between SN1 and SN2. Okay.